بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات میں ناکامی سے دوچار سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے نتائج چیلنج کر دیے۔ 30 سے زائد حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی۔ جماعت اسلامی تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدواروں نے نتائج ماننے سے انکار کر دیا۔ انتخابات 2024 کے نتائج چیلنج، سیاسی جماعتیں عدالت پہنچ گئیں۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے آزاد امیدواران نے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ قومی اسمبلی کے 14 حلقوں کے نتائج کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، خواجہ اظہار، عامر معین، ارشد وہرا اور حفیظ الدین کی کامیابی چیلنج کر دی گئی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے مرزا اختیار بیگ، نبیل گبول اور قادر پٹیل کے مستقبل کا فیصلہ بھی عدالت کرے گی۔ قومی اسمبلی کی طرح 16 صوبائی اسمبلی کے نتائج کو بھی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا، جس میں جماعت اسلامی کی جانب سے 4 حلقے پی ایس 104، 123، 124، 126 بھی شامل ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے 30 سے زائد انتخابی نتائج کے خلاف تمام درخواستوں پر الیکشن کمیشن اور وفاق کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست گزاروں کو درخواست اور فارم 45 الیکشن کمیشن کو بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا، ہم کوئی حکم جاری کر رہے ہیں مگر آپ سمارٹ بننے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اگر سمارٹ بننے کی کوشش کریں گے تو نتائج کے لیے تیار رہیے گا۔ کراچی کی 30 سے زائد نشستوں کے نتائج کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ دوران سماعت چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی نے کہا، تمام معاملات کو الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق دیکھنا ہوگا۔ الیکشن کمیشن بااختیار ادارہ ہے، اس اسٹیج پر ہم معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھ لیتے ہیں، آپ بتائیں کیا کر رہا ہے الیکشن کمیشن؟ جس پر سرکاری وکیل نے کہا، درخواست گزاروں کو حکم دیں الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، جب آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ سارے راستے بند کر دیں گے۔ لوگ احتجاج کرتے ہیں تو انہیں ڈنڈے مارے جاتے ہیں، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لوگ ناانصافیوں کے خلاف عدالت نہ آئیں تو پھر کہاں جائیں؟ الیکشن کمیشن آفیسر نے کہا کہ شکایتی سیل قائم کر دیا گیا ہے، وہاں درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، ہم پہلے ہی اسٹے دے دیں اور اپنی رائے کے مطابق فیصلہ سنا دیں تو بعد میں کیا ہوگا؟ الیکشن کے حوالے سے کئی معاملات بعد میں بھی آئیں گے، ٹریبیونل بھی بنے گا۔ ایڈوکیٹ جبران ناصر نے کہا کہ ہماری تو دوبارہ گنتی کی درخواست بھی نہیں سنی جا رہی، فارم 47 میں نتیجہ بدل دیا گیا، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا، کیا ہارنے والے خود بنا رہے ہیں فارم 45؟ عدالت نے تمام درخواستوں پر الیکشن کمیشن اور وفاق کو نوٹس جاری کر دیے۔ ریمارکس دیے کہ جواب دیں آپ نے کیا کارروائی کی، اگر فارم 45 اور فارم 47 میں تضاد ہے تو اس کا جائزہ لیں۔ درخواست گزاروں کو درخواست اور فارم 45 الیکشن کمیشن کو بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا، ہم کوئی حکم جاری نہیں کر رہے مگر آپ سمارٹ بننے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اگر سمارٹ بننے کی کوشش کریں گے تو نتائج کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ حافظ نعیم کا پی ٹی آئی کے حق میں سندھ اسمبلی کی سیٹ چھوڑنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے سپریم کورٹ کی نگرانی میں الیکشن کا فورینسک آڈٹ کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ دعویٰ کیا، ہم جہاں سے جیتے ہیں وہاں سے ہرا دیا گیا۔ مزید تفصیلات طاہا ملک کی رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی نے الیکشن کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا۔ حافظ نعیم نے اپنی جیتی ہوئی سندھ اسمبلی کی نشست چھوڑ دی۔ واضح کیا کہ فارم 45 کے مطابق نتائج جاری کیے جائیں۔ ادارہ نور حق میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی بولے، پی ایس 129 پر آزاد امیدوار جیتا ہے، لہذا خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے، اپنی سیٹ واپس کرتا ہوں۔ لوگوں نے کسی کو بھی ووٹ دیا ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور میری یہ سیٹ، یہ الیکشن کمیشن کے منہ پر ایک تماچا بھی ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی یہ سیٹ، ہمیں ہمارا حق دو، جو جیتے ہیں ان کو جتاؤ، جو ہارے ہیں ان کو ہراؤ، جو ایک ایک سیٹ پہ 3-3 ہزار 4-4 ہزار ووٹ لیے ہوئے ہیں ان کو آ کر مسلط کر دو اور دیکھ لو کہ وہ کیا تماشا کر رہے ہیں، کل دیکھ لو کتنی فائرنگ انہوں نے کی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم جائز طریقے سے جیتی تو ہم قبول کرتے۔ اس ملک میں الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے، ہمیں بلدیاتی انتخابات سے زیادہ ووٹ ملے۔ پوری قوم کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، میں الیکشن لڑ رہا تھا اور الحمدللہ ہماری کیمپین زوردار، ہمیں ووٹ بہت ملے، ہمیں دونوں این اے کی سیٹوں کے اوپر 50-50 ہزار کے قریب ووٹ ملے الحمدللہ۔ ہمارا نیریٹو سیل ہوا، ہمیں بلدیاتی انتخاب سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیے۔ کراچی کے لیے آج بھی نجات دہندہ جماعت اسلامی کو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ایک نیشنل فضا میں پی ٹی آئی کو بھی زیادہ ووٹ ملے۔
امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ اس انتخابات میں بدترین دھاندلی کی گئی۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فارم 47 کے مطابق مجھے 26,000 ووٹ ملے، لیکن فارم 45 کے مطابق مجھے 30,000 ووٹ ملے۔ تحریک انصاف کو زیادہ ووٹ ملے ہیں، ہم ان کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کرتے، ہمیں تحریک انصاف کی جیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ طہا ملک، کراچی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کی جانب سے صوبائی اسمبلی کی نشست چھوڑنے پر ایم کیو ایم پاکستان کا بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار معاذ مقدم نے حافظ تیمور رحمان کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حافظ تیمور رحمان نے انتخابات میں جعلی طریقے سے کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے اپنی جعلی اور دھاندلی زدہ جیت کا بھانڈا پھوٹنے سے روکنے کے لیے نشست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان ان کی دھاندلی زدہ جیت کو ثابت کرنے کے لیے پوری تیاری کر چکی ہے۔ فنکشنل لیگ نے سندھ اسمبلی کی 2 نشستیں چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 16 فروری جمعے کو حیدرآباد بائی پاس پر دھرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ جی ڈی اے سربراہ پیر پگارا نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جب فیصلہ ہو چکا تھا کہ سندھ پیپلز پارٹی کو دینا ہے تو یہ 2 نشستیں بھی آصف علی زرداری کو دے دیں۔ شہید بی بی کے دور میں بھی ایسا نتیجہ نہیں تھا۔ کہا گیا کہ آصف زرداری سے الائنس کر لیں، فنکشنل لیگ کو نشستیں مل جائیں گی۔ اور مزید یہ بھی کہا کہ منع کرنے پر جی ڈی اے کے سامنے 0 اور ایم کیو ایم کے سامنے 15 لکھا ہے۔ صفدر عباسی نے کہا کہ احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے، اجلاس کے روز سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے، دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کریں گے، ہمارے 2 ارکان اسمبلی حلف نہیں لیں گے۔ ابھی بدترین 15 سال کی کرپشن کے بعد جو رزلٹ ہے پورا سندھ سوئپ کی ہے، تو یہ آر او ڈی آر او کا کام نہیں تھا بھائی۔ اس الیکشن کو تو ہم لوگ جی ڈی والے قبول کرتے ہی نہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، اور یہ الیکشن کو میں کہتا ہوں اینٹی اسٹیٹ الیکشن۔ ایک کسی دوست نے مجھے آج سے 2-2.5 مہینے پہلے کہا تھا تم جی ڈی اے ختم کرو، زرداری صاحب کے ساتھ الائنس کر لو، اپنی سیٹیں نکال لو، جی ڈی اے کو بھول جاؤ۔ میں نے کہا یار بات سنو، میری کمٹمنٹ ہے، میں یہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کہا تو پھر سن لو، جی ڈی اے کے سامنے 0 لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا باقی پارٹیوں کے سامنے؟ تو کہا کہ ایم کیو ایم کے سامنے 15+ لکھا ہوا ہے۔ جی ڈی اے کی تمام دوستوں کی جو آج ملاقات ہوئی ہے، اس پہ تمام جتنے بھی پارٹی ہیڈز ہیں اور ہمارے جو انڈیویجول دوست ہیں جو جی ڈی اے کے ساتھ ہیں، انہوں نے پیر صاحب کی قیادت پہ اعتماد بھی کیا ہے، اور پیر صاحب کو ہم نے خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے کہ جی یہ واحد الائنس ہے جو 2018 کے بعد کنٹینیو کیا، اور ہم لوگوں نے دوستوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اور پیر صاحب کی قیادت میں جو ہے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم اس الیکشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ اس میں کافی چیزوں پہ ہماری بحث ہوئی ہے، یہاں پہ پوری سب دوستوں نے یہاں پہ اپنی اپنی بات کی ہے، لیکن اس وقت ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ 16 تاریخ جمعے کو 11 بجے تمام سندھ کے عوام سے اپیل کر رہے ہیں ہم لوگ کہ وہ جمع ہوں حیدرآباد بائی پاس کے اوپر، اور وہاں جمع ہو کے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور مجھے یقین ہے کہ پوری سندھ سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس میں آئیں گے، اور اس سے دھرنے سے پیر صاحب خود خطاب کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم اس جو احتجاج ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور ہم مختلف پوائنٹس دیں گے جہاں پہ ہم جو ہے نا روڈ بلاکس بھی کریں گے، ہم پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن بھی کریں گے مختلف شہروں کے اندر۔ لیکن یہ کہ ہمارا سر دست فیصلہ یہ کہ ہمارے دونوں ایم پی ایز جو ہیں جو 2 الیکٹ کر کے وہ خیرات دینے کی جو کوشش کی گئی ہم اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، اور جو 2 ہمارے ایم پی ایز ہیں راجر صاحب اور سائی راشد صاحب وہ ابھی اوتھ نہیں اٹھائیں گے، اور اس دن جس دن اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس دن لاکھوں کی تعداد میں لوگ پورے سندھ سے آ کے اسمبلی کے اس اجلاس کے خلاف احتجاج کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اسمبلی نہ چل سکے اور یہ ایم پی ایز اوتھ نہ اٹھا سکے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ میں حکومت بنانے اور کابینہ میں وزارتوں کے قلمدان دینے کے حوالے سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ اسمبلی میں قائد ایوان کے لیے مراد علی شاہ
फरियाल तालपुर और नासिर हुसैन शाह के नामों पर गौर किया जा रहा है। आजिज जमाली की रिपोर्ट। सिंध असेंबली में पार्टी पोजीशन वाजे हो गई। पीपल्स पार्टी ने 3 आजाद अरकान से राब्ता कर लिया। सिंध असेंबली के 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 10 और अकलियतों की 6 नशस्तें मिलने का इम्कान है, जिसकी वजह से सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की कुल नशस्तों की तादाद 110 तक हो सकती है। दूसरी बड़ी पार्टी की पोजीशन MQM पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। सूबाई असेंबली की 28 जनरल नशस्तों पर MQM को खवातीन की 6 से 7 और अकलियतों की 3 से 4 नशस्तें मिलने का इम्कान है। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान के लिए मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और नासिर हुसैन शाह के नामों पर गौर किया जा रहा है, जबकि शर्जील नाम मेमन, सईद गनी और सरदार शाह भी वजीर आला की दौड़ में शामिल हैं। स्पीकर सिंध असेंबली के लिए आगा सिराज दुरानी, निसार खोड़ो और रेहाना लगारी के नामों पर गौर किया जा रहा है। अलबत्ता सिराज दुरानी ने क़यादत से वजारत मांग ली है। आजिज जमाली, कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। अरकान ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। मज़ीद इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद है। आजिज बताइएगा। जी देखें, ये इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तवील मीटिंग है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो अभी तक जारी है। इस मीटिंग के फैसलों का बाकायदा ऐलान किया जाएगा, लेकिन इब्तिदाई जो एलामिया जारी हुआ है पाकिस्तान पीपल्स जानिब से उसके मुताबिक इस इजलास में पीपल्स की सेंट्रल कमेटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी की चेयरमैनशिप का इजहार किया है और आसिफ अली जरदारी को तमाम अख्तियारात दिए हैं। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि नई हुकूमत के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून से रखते हुए है उसके बारे में भी मीटिंग को आगाह किया गया है और इस बात पर भी गौर किया गया है कि हुकूमत साजी के अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। लेकिन इस मीटिंग में क्या फैसले हुए, आया हुकूमत का हिस्सा बनती है या नहीं पाकिस्तान पार्टी, या जो मुज़ाकरात हुए हैं मुस्लिम लीग नून से उसका क्या जवाब देती है, इसके बारे में किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं हुआ है। अब तक खत्म नहीं हुई है, मीटिंग अभी तक भी जारी है और कहा जा रहा है मीटिंग खत्म होगी तो इसके फैसलों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वहाँ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फैसलों का ऐलान किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अहम ऐलानात किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आजिज जमाली। और आम इंतखाबात को 4 रोज गुजर गए मगर शहर में सियासी वॉल शॉकिंग, झंडे और बैनर्स ताहाल न हटाए जा सके। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। बल्दियाती इदारों की सुस्ती ने शहर का हुस्न तासर कर दिया। आम इंतखाबात को 4 रोज गुजरने के बावजूद शहर भर में सियासी चौकिंग मौजूद, झंडे और बैनर आवेजा। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैक साइड पे ये जो रोड चल रहा है इस पे कितने जो है वो सियासी जो है वो झंडे लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, जो भी चीज़ें लगी हुई हैं सारी। अभी इलेक्शन हुए हुए तकरीबन 4 रोज गुजर गए लेकिन अभी भी ये चीज़ें हटाई नहीं गई। इससे क्या माहौल ख़राब हो रहा है, सियासी कशीदगियाँ भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा फिर रोड नए बने हुए रोडों की जो हालत है वो भी खराब दिख रही हैं। सड़कों, चौराहों और गली मोहल्लों में सियासी, मजहबी और आज़ाद उम्मीदवारों के बैनर्स, पोस्टर, झंडों ने सरकारी इमलाक को ढक दिया। शहरी कहते हैं तमाम अशिया का फौरी सफाया किया जाए। अभी इलेक्शन हो चुके हैं तो उसके बाद भी कशीदगी और ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये लिहाजा ये झंडे वंडे पोस्टर वगैरह हटवाए जाएँ और जो दीवारों पे लिखे जा रहे हैं इसको भी ख़त्म किया जाए। महज़ब माशरे में दरो दीवार और इलेक्ट्रिक के पोल मुख्तलिफ अबारात और परचमों से आरी होते हैं। इस हवाले से बल्दियाती इदारों को फौरी मुतहरिक होने की ज़रूरत है। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इंटर साल अव्वल के मुतासरा तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश कर दी है। इंटर साल अव्वल के मुतल्लिका फैकल्टीज़ के तलबा को मज़ामीन में अलहदा ग्रेस मार्क्स दिए जाने की सिफारिश की गई है। ज़राए के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलबा के फेल होने का जिम्मेदार इंटर बोर्ड को ठहरा दिया गया है। तलबा के फेल होने की जिम्मेदारी बोर्ड के साथ साथ वज़ारत तालीम सिंध पर भी आयद हो रही है। कमेटी ने तलबा की बड़ी तादाद में फेल होने की सबसे अहम वजह निसाब की तब्दीली करार दी है। दरसी किताबों की अदम दस्तियाबी, मार्किंग स्कीम का ताख़िर से ऐलान, MCQs कम करने का तलबा के फेल होने की वजह करार दिया गया। ग्रेस मार्क्स का तयन निगरान वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ही किया जाएगा।
ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की बेहतरी के लिए मसनूई जहानत से लेस रोबोट तैयार कर लिया गया। मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी से लेस टिमटिम नामी रोबोट कितना कारआमद है, बताएंगी आयमा खान अपने रिपोर्ट में। This is red. This is black. पाकिस्तान में ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों की बेहतरी के लिए मसनूई जहानत से लेस रोबोट तैयार कर लिया गया है। तुम क्या क्या कर सकते हो? मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं आपकी तस्वीर भी ले सकता हूँ और आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। जदीद नौयत का मुनफरिद रोबोट पाकिस्तान की टेक स्टार्टअप कंपनी हैप्रो ने तैयार किया, जिसे टिमटिम का नाम दिया गया है, जो समाजी तौर पर मावन रोबोट जिसे आर्टिस्टिक बच्चों की मदद और इनके साथ मशगूल होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टिमटिम मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी से लेस ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों के साथ बातचीत करता है और आज़ादी से हरकत कर सकता है। इस हवाले से हैप्रो ग्रुप की मेंबर मरियम का कहना है कि टिमटिम दुनिया भर में रोबोट बेस्ड स्टडी के बारे में होने वाले आलमी मुताले का हिस्सा है, जिसके पाकिस्तान में बहुत अच्छे नताइज मिले हैं। टिमटिम को हमने 30 बच्चों पर मुशाहिदा किया है। टिमटिम बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिन्हें बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है, सोशलाइज करने में प्रॉब्लम होती है। तो टिमटिम बनाने का मकसद ये था कि जो बच्चे बात सही से नहीं कर पाते वो ज़िंदगी की तरफ और सोसाइटी की तरफ वापस आएँ, क्योंकि उन्हें सोसाइटी में सही तरीके से उनकी स्किल्स को वैल्यू नहीं किया जाता। तो टिमटिम बेसिकली उनकी लाइफ स्किल्स को प्रैक्टिस करवाता है, क्लासरूम में कैसे बातें करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बातें करनी है। तो टिमटिम एक तरह का दोस्त है, एक तरह का टीचर है, इमोशनल कोच है। ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों की सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए अब तक 5 रोबोट्स तैयार किए जा चुके हैं। कैमरामैन आकिब के साथ आयमा खान, सिटी 21। वज़ीर मादनियात ने ही महकमे में करप्शन का एतराफ़ कर दिया। हर साल मादनियात के लीजों में सरकारी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान होता है। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में निगरान वज़ीर मादनियात मीर खुदा बख्श मरी ने कहा कि सूबे में कीमती मादनियात की लीज मनपसंद लोगों को कम कीमत पर दी जाती है। उन्होंने कहा कि हर साल मादनियात की लीजों में सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान होता है। निगरान वजीर ने यह भी कहा कि मादनियात के लीज देने के लिए कानून साजी की जाए, लीज की रकम बढ़ाई जाए, जिन इलाकों में मादनियात निकलती हैं वहां के अवाम उनके हुकूक दिए जाएं। तीन हटी फूल मंडी में दिन दहाड़े डकैती की वारदात, मुलजमान की फायरिंग से शहरी जिंदगी के बासी हार गया। मकतूल कोरंगी का रिहायशी और दुकान पर फूल लेने आया था। वाक़े के बाद पुलिस और रेंजर्स ने पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में डाकू बेलगाम बेरहम डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। कराची के इलाके तीन हट्टी फूल मंडी में डाकू ने दुकान के मालिक से रकम छीनकर जाते हुए फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में फूलों के खरीदारी के लिए आने वाला शहरी जिब्रान को गोली लगी और वो जान की बाजी हार गया। यहाँ मैं खड़ा हुआ था, बोला कि आप निकाल दो, क्या आपके पास? मैंने ऐसे वो कह रहा मार दूंगा आपको, मैं पैसे दे दो। मैंने जेब में वो जितने पैसे थे तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर थे, एक बावनी के करीब थे, तो मैंने ऐसे दे दिए। तो वो जैसे यहाँ से जाने लगे तो फिर उन्होंने 2 फायर खोले। एनी शाहिद खातून का कहना है कि काफी रश था, लेकिन किसी ने भी मुल्जिमान को नहीं पकड़ा। करोड़ों रुपए का काम होता है यहाँ पे फूलों की मार्केट में, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। कैमरे लगे होने चाहिए ताकि उनकी फुटेज तो सामने आए कि किस दीदा दिलेरी से उन्होंने एक बंदे की जान ले ली। इतनी दूर कोरंगी से वो बंदा आया और उसकी गाड़ी भरी खड़ी है सामान की और बंदा चला गया दुनिया से। कितना अफसोस की बात है। वाक़े के बाद पुलिस और रेंजर्स ने पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की तादाद 2 थी। मकतूल की लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वाक़े की मजीद तहकीकात की जा रही है। कैमरामैन सैयद दानियल के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21। दरामदी बिल की तलब पर रुपए की कदर में कमी हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे और ओपन मार्केट में 18 पैसे महंगा हो गया। बैरूनी कर्ज और दरामदी बिल की अदायगी पर रुपए पर प्रेशर देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे के इजाफे से 279 रुपए 33 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 281 रुपए 19 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में यूरो 52 पैसे इजाफे से 302 रुपए 58 पैसे और बरतानवी पाउंड 54 पैसे इजाफे से 354 रुपए 65 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद फिर मंदी रिकॉर्ड की गई। इलेक्शन के बाद से अब तक 2 कारोबारी सेशंस में मुसलसल मंदी के बायस 100 इंडेक्स में
3078 पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 61,065 की सतह तक पहुंच गया। अयाज राना की रिपोर्ट। सियासी बेयकीनी सूरत हाल, सरमायाकार मोहतात हो गए, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का राज। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में शेयर्स की फरोख्त का सिलसिला जारी रहा। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1869 पॉइंट्स की कमी से 61,065 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट माहिर शेरियार भट्ट का कहना है, मखलूत हुकूमत कायम हुई तो मईशत के लिए कमजोर फैसले लिए जाएंगे। देखिए, अभी तक जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए तो क्लियर तौर पे नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है, एक कोलिशन गवर्नमेंट कभी भी गैर मकबूल फैसले और मुश्किल फैसले नहीं कर सकती, क्योंकि हमें सियासी इस्तेकाम चाहिए। और इस तरह से हमने विटनेस किया था लास्ट टाइम, जैसा पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो मरकज में एक पार्टी की हुकूमत होती थी, सूबे में दूसरी पार्टी की हुकूमत होती थी, तो उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते थे। मार्केट में कारोबार के दौरान ऑयल एंड गैस सेक्टर, एनर्जी, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई। मार्केट में 298 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों के 264 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर स्टेट बैंक का एक्शन। PBS एक्सचेंज लिमिटेड कंपनी का लाइसेंस मंसूख कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुतल्लिका कवानीन और जवाबित की खिलाफ वर्जियों पर PBS एक्सचेंज कंपनी का इजाजतनामा मंसूख कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक एक्सचेंज कंपनी बाशमूल उसके हेड ऑफिस और आउटलेट्स अब किसी भी किस्म की ज़र मुबादला से मुतालिक कारोबारी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। और खेल के मैदान से खबर यह है कि अमरीकी इदारा कराची में क्रिकेट अकेडमी और इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करेगा। T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी के सबब अमरीका में क्रिकेट तेजी से मकबूल होने लगी है। अमेरिका में क्रिकेट इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। आपको पता है कि अगला वर्ल्ड कप भी अमेरिका में हो रहा है, और अमेरिका में जिस तरह इंडिया को मौका मिला उसने उस मौके का फ़ायदा उठाया, एसोसिएशन में और दूसरी जगह काफ़ी उसने अपने आप को बिल्ड किया। अब पाकिस्तानी इसमें आ रहे हैं, हमारी टीम, हमारे चेयरमैन साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिकन कप चैम्पियन है किंग्समैन क्रिकेट। फवाद सरवर को जुनून है क्रिकेट का। हमारी एक मीटिंग PCB के फॉर्मर चेयरमैन से हुई थी और हमने उनको उस वक्त बताया था कि हम पाकिस्तान में PSL की जो 7th टीम है उस वक्त हमने ख्वाहिश जाहिर की थी कि अगर वो उसके लिए बिड करते तो हम PSL की ये 7वीं टीम लेते, और लेने की ख्वाहिश हमने जाहिर कर दी थी। आज भी ये ख्वाहिश हम ये बात हम उन तक पहुंचा चुके हैं। कराची क्रिकेट एसोसिएशन के सदर नदीम उमर का कहना है कि शहर कायद में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। कराची के खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल से कायद आज़म ट्रॉफी, टी और अंडर 19 टूर्नामेंट जीता, जबकि अंडर 19 3 रोज़ा और नेशनल वनडे कप की रन्स अप रही है। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। डोमेस्टिक सीजन में कराची रीजन की शानदार फतोहात पर जश्न। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नदीम उमर ने कराची के खिलाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा कौमी टीम का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर की और कहा कि कराची की एक टीम तश्कील देकर इसे दीगर ममालिक के दौरे पर भेजा जाएगा। हम कराची को खुद ही बनाएंगे। मैं आपको अभी जैसे कह रहा था, ये कराची एक पूरा मुल्क है और इसमें बहुत वसाइल हैं, तो हम अगर यही देखते रहेंगे कि हम फलाने के बाद बोर्ड नहीं, हमें अपना खुद खड़ा होना चाहिए, खुद हमें अपनी जिम्मेदारियां कबूल करनी चाहिए और खुद ही हमें कराची क्रिकेट क्या कराची में जो भी चीज़ें उनको हमको ऊपर लेके जाना चाहिए। तकरीब से सैयद इरशाद अहमद जिरानी नायब सदर RCAK ने कहा कि नदीम उमर की क़यादत में कराची की क्रिकेट को उसका असल मुकाम दिलाएंगे। उनकी पूरी कोशिश है कि वो पाकिस्तान में भी क्रिकेट को उस नहज पर ले जाएं जहां आज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, वहाँ लेकर जाएं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास स्किल है, पोटेंशियल है, कर सकते हैं, लेकिन इनको जो एक गाइडेंस मिलनी चाहिए प्रॉपर, वो नहीं मिल पा रही। और वो गाइडेंस वो है जिसके साथ टेक्नोलॉजी नती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, और वो साथ अगर हो जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पास इतना पोटेंशियल है जो बगैर इससे स्किल के अपने आप को इन्होंने मनवाया है पूरी दुनिया में, तो इस स्किल के साथ ये बहुत आगे निकल सकते हैं।
जावेद अहमद खान सेक्रेटरी RCAK ने कहा कि नदीम उमर ने जिस तरह टीमों की हौसला अफजाई की है इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। तकरीब से साबिक कप्तान कौमी टीम सरफराज अहमद ने कौमी अंडर-19 टीम और कप्तान साद बेग की तारीफ की। तकरीब से खालिद नफीस चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी RCA, इकबाल इमाम हेड कोच कराची वाइट्स ने भी खिताब किया। कैमरामैन अतहर अब्बास के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।